ایک اور سابق وزیر اعظم کی گرفتاری، شاہد خاقان عباسی کی بھی آ گئی باری۔ نیب نے نون لیگ کے سینئر نائب صدر کو LNG کیس میں ٹھوکر نیاز بیگ سے حراست میں لیا۔ شاہد خاقان کو گرفتاری کے بعد لاہور سے نیب راولپنڈی آفس منتقل کر دیا۔ نیب نے سابق وزیر اعظم کو آج طلب کر رکھا تھا، وہ پیشی کی بجائے شہباز شریف کی پریس کانفرنس کے لیے لاہور آ گئے۔ احتساب کا عمل تیز، گرفتاریوں کا نیا فیز۔ LNG کیس میں مفتاح اسماعیل اور عمران شیخ کو بھی حراست میں لینے کا فیصلہ۔ سابق مشیر خزانہ اور سابق MD PSO کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں چھاپے۔ کراچی میں نیب ٹیم مفتاح اسماعیل کے گھر بھی داخل ہوئی، لیکن وہ وہاں نہیں ملے۔ لاہور میں نیب اہلکار عمران شیخ کے گھر کے باہر کئی گھنٹے تک موجود رہے۔ شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا، آپ اتنی جلدی گھبرا گئے؟ گرفتاری پر فردوس عاشقوان کا رد عمل، کہا سب کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہے، عدالتیں اور ادارے آزاد ہیں۔ وزیر اعظم پر انگلیاں اٹھانا نون لیگ کا بغض ظاہر کرتا ہے، جن کی داڑھی میں تنکا ہے وہ وضاحتیں دے رہے ہیں۔ عالمی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے کر پاکستانی عدلیہ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے۔ لندن میں پرائم لا سولیسٹر کی پریس کانفرنس، پاکستانی نیاد وکلا کا کلبھوشن کیس فیصلے پر اظہار خیال۔ کلبھوشن کیس پر عالمی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے کر اوورسیز پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ سوئٹزرلینڈ میں مقیم پاکستانیوں کا کہنا ہے کلبھوشن کیس سے ثابت ہو گیا بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں مصروف ہے، عالمی برادری نوٹس لے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین خان گنڈاپور کا دورہ برطانیہ جاری۔ برمنگھم، لیڈز، مانچسٹر میں کشمیری کمیونٹی کی جانب سے تقاریب کا اہتمام۔ PTI حکومت نے مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے، علی امین گنڈاپور کا خطاب۔ گلاسکو میں پاکستانی کمیونٹی کا رورل سپورٹ پروگرام پاکستان کے وفد کے اعزاز میں اشاعیہ۔ پاکستان میں حقیقی تبدیلی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو بھرپور ساتھ دینا ہوگا، دیہی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی سخت ضرورت ہے، مقررین کا خطاب۔ مسلم لیگ نون کے MNA چودھری احسان الحق باجوہ کی دبئی میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ ہنگامی پریس کانفرنس، حکومت سے تنقید برداشت نہیں ہوئی، اینٹی کرپشن میں FIR درج کیے جانے کی مذمت کرتا ہوں، پریس کانفرنس سے خطاب۔ ریاض میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز کی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے کئی امور، پاک سعودی تعلقات کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال۔ رنگا رنگ پھول، دل فریب نظارے، برطانیہ کے پہلے گارڈن سٹی لچورتھ کی خوبصورتی اپنی مثال آپ۔ 1909 میں تعمیر ہونے والا برطانیہ کا پہلا راؤنڈ اباؤٹ بھی شہر کی تاریخ کا حصہ۔ بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, एक और साबिक वज़ीर आज़म सलाखों के पीछे पहुंच गए। नैब ने पूछताछ के लिए बुलाया मगर पेश न होने पर नैब ने LNG दरामद केस में शाहिद खाकान अब्बासी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम आबिद सईद शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। साबिक मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के घर पर भी छापा मारा गया, ताहम गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी। शाहिद खाकान अब्बासी भी बने नैब के मेहमान। नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आज़म को तलब किया लेकिन पेश होने की बजाय लाहौर पहुंच गए। नैब हुकाम ने ठोकर नियाज बेग टोल प्लाजे पर गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। नैब एलामिये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी को LNG दरामद केस में गिरफ्तार किया गया है। रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी पर इल्जाम है कि उन्होंने LNG की दरामद का 220 अरब का ठेका दिया जिसमें वो खुद हिस्सादार है। चेयरमैन नैब ने साबिक मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD PSO इमरानुल हक शेख के वारंट पर दस्तखत कर दिए। पेश न होने पर नैब ने कराची में मिफ्ता इस्माइल के घर पर छापा मारा, ताहम वो मौजूद न थे जिस पर गिरफ्तारी न हो सकी। LNG स्कैंडल में एक और अहम पेशरफ सामने आई है। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम आबिद सईद शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। आबिद सईद ने चेयरमैन नैब के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया, ताहम मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जाएगा। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हुए तो नून लीग का शदीद रद्द अमल सामने आया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, हुकूमत ने नून लीग पर एक और वार किया। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब बोली, इमरान खान यहाँ डिक्टेटर भी हिटलर नहीं बन सका, आप सिलेक्टेड होकर ये काम कर रहे हैं। आज इमरान खान न्याजी और नैब की मिली भगत से एक भरपूर वार हुआ है मुस्लिम नून की क़यादत के ऊपर। शहबाज शरीफ शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी पर बरहम बोले, साबिक वज़ीर आज़म को ऑर्डर के बगैर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये है तमाशा जो इस वक्त इमरान खान न्याजी और नैब की मिली भगत से इस मुल्क के अंदर लगा है। वजह साफ जाहिर है कि इमरान खान न्याजी इन 11 महीनों में उसने पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाल दिया और उस तबाहशुदा मईशत के जनाजे को इन गिरफ्तारियों के पीछे छुपाना चाहता है। एहसन इकबाल ने कहा, इस तरह नाइंसाफियां की जाएंगी तो उनको भी तारीख में जवाबदेह होना पड़ेगा। इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने जब उनसे इस्तफसार किया कि वो ऑर्डर्स दिखाए जाएं तो उनके पास कोई ऑर्डर्स नहीं थे। उसके कुछ देर के बाद नैब के कुछ हुकाम आए, उन्होंने फोन के जरिए व्हाट्सएप ऑर्डर दिखाने की कोशिश की। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एक फोटोकॉपी दिखाकर साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये है इमरान खान न्याजी की नैब और नए पाकिस्तान का कानून? हमने कहा कोई दस्तावेज दे जिसमें लिखा हो कि शाहिद खाकान अब्बासी को किस जुर्म में सजा दी जा रही है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। फिर हमें रोककर नैब के दफ्तर से भागकर ये फोटो कॉपी लाई गई। एक फोटो कॉपी का पर्चा, ये है वो इज्जत जो साबिका वज़ीर आज़मों के साथ हो। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जहां मीडिया और अदलिया आजाद हो। ऐसा लग रहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है। अफसोसनाक बात है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की खिदमत की है उन्हीं के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जहाँ मीडिया भी आजाद हो, जहाँ जुडिशरी भी आजाद हो और जहाँ इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाए। मुझे लगता है मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में। बिलावल भुट्टो ने शाहिद खाकान अब्बासी की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा, हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। खुर्शीद शाह ने कहा, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ऑपोजिशन को जवाब देने के लिए मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान मैदान में उतरी और बोली, सबको अपने किए की सजा भुगतना पड़ेगी। साथ ही साथ बोली कि वज़ीर आज़म को इस अमल में घसीटना जाहिर करता है कि नून लीग उनसे बुग़्ज़ रखती है। शाहिद खाकान साहब चूरी खाने वाले मजनू ना बने। आपने मियाँ साहब के साथ अहदो पमा निभाने की कसम खाई थी,
तो इतनी जल्दी आप बुखला गए हैं, आपको अपने जो मुकाफाती अमल है उससे गुजरना है। आपको हुकूमत पर उंगलियां उठाने की बजाय PML की क़यादत को हुकूमत पे इल्ज़ाम तराशियाँ, बोतान तराशियाँ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस अमल में घसीटना ये ज़ाहिर करता है कि PMLN की क़यादत वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ज़ाती अदावत, हसद और बुग़्ज़ रखती है। अदारे बाख्तियार हैं और ये कोई वजह नहीं है उन्हें इंसाफ ना मिले, लेकिन जिस की गाड़ी में तिनका है उसको यकीनन ज़मीर की अदालत के अंदर परेशानी, इज़्तिराब और अपनी ज़मीर की अदालत का जो कैदी है उसको मीडिया में आके वज़ाहतें देने की ज़रूरत पड़ रही है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया का आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा, बोरिस जॉनसन या जेरेमी हंट? दोनों उम्मीदवारों ने बरतानिया भर में 15 से ज़ायद पार्टी मीटिंग्स में हजारों पार्टी वर्कर्स के सवालों के जवाब दिए और ओहदा संभालने पर अपनी तरजीहात से पार्टी वर्कर्स को आगाह किया। आखिरी मीटिंग के हवाले से बताएंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान अपनी इस रिपोर्ट में। 300 से ऊपर पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग तशरीफ़ लाए हैं आज, और उन्होंने खुद दोनों जो कैंडिडेट्स उनकी बातें सुनी और उनको जो सवाल पूछे उन्होंने, और उसके बाद अभी फैसला करेंगे। हफ्ते के अंदर उन्होंने फैसला करना है कि भाई किसके लिए वो वोट करेंगे। डायरेक्टर कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान आलिया अफजल खान ने इस मौके पर कहा कि टूरी पार्टी की ये मीटिंग इंतहाई कामयाब रही है और पाकिस्तानी खवातीन के लिए इस पार्टी में आगे बढ़ने के कसीर मौके मौजूद हैं। कंजर्वेटिव पार्टी में खवातीन का, पाकिस्तानी खवातीन का स्कोप पाकिस्तानी मर्दों से भी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि एथनिक माइनॉरिटी की खवातीन को इंकरेज किया जाता है कि वो पार्टी को ज्वाइन करें, और हमारी जो खवातीन की नई नस्ल है वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं और उनमें वो कॉन्फिडेंस है कि वो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में आ सकती हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी शाकिर इलाही ने इस मौके पर कहा कि टूरी पार्टी की आज की मीटिंग बहुत कामयाब रही थी और इसमें लोगों की भरपूर शिरकत इस बात का सबूत है कि आज भी टूरी पार्टी बरतानिया की मजबूत और बड़ी जमात है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं इधर शामिल हों और आएँ, बातें सुने और इस चीज़ को सपोर्ट करें। Look, I'm very optimistic. We've had a really good set of hustings. Everyone's been really supportive. A lot of people have come in not knowing who they were going to vote for and come out and wearing our Jeremy Hunt stickers. So it's been really good. I did really enjoy, and I would like to be. I'd like to be a prime minister as a Boris Johnson because he's very good person. बहुत अच्छी हस्टिंग गई है आज की, उसमें बोरिस जॉनसन ने अपना क्लियर व्यू दिया है कि उनकी क्या सोच है, वो किस तरह से बरतानिया को लीड करेंगे। इस तरह से जेरेमी हंट ने अपना व्यू दिया कि वो किस तरह से इस अजीम मुल्क को लीड करेंगे। टोरी पार्टी इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क के लिए इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बेस्ट पार्टी है। इनका फैमिली स्ट्रक्चर भी अच्छा है, ख़ानदान फैमिली स्ट्रक्चर बिलीव करते हैं, हमारे पाकिस्तानियों के ट्रेडिशन के काफ़ी करीब हैं। लेकिन प्रॉब्लम है इस वक्त ब्रेक्सिट की, जैसा कि ये दोनों लीडर कह रहे हैं। देखिए रियलिटी ये है कि विदाउट डील अगर हम निकलेंगे तो ब्रिटिश के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी। हमने जो अपना पाउंड है, जो हमारा करेंसी है, उसकी वैल्यू किस हद तक जाएगी कि ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स को फ़र्क पड़े। हमने इमिग्रेशन के कैसे डील करना है, हमने अपना इंटरनल बजट जो है उसको किस तरह डील करना है। ये सारे गोल्स जो हैं ये कंक्रीट होने चाहिए, एक विजन होनी चाहिए। Maybe come across as a bit more serious because people think that Boris is not going to be very serious and that's why he can move the crowds and everything, and that Jeremy will come across as being the professional compared to Boris. But here the public has really shown that the support is greatly for Boris because he's honest in his answers and he's not just making a general reply. बरतानिया की पार्टीज़ के जो सिस्टम है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ लैक हो रही है हमारे मुल्क में, वो ये है कि पार्टीज़ अभी तक इदारे नहीं बन सके हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से ये पार्टियाँ इदारे बनी हैं, यहाँ पे लेबर हो, कंजर्वेटिव हो या कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है शख्सियात से। लंदन के एक्सेल में होने वाली पार्टी की जनरल मीटिंग में हज़ारों पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारों ने शिरकत की। बोरिस जॉनसन या जेरेमी हंट, कौन होगा आइंदा बरतानिया का वज़ीर आज़म? इसीलिए आज कंजर्वेटिव पार्टी ने हस्ती तकरीब में
दोनों उम्मीदवारों से खूब सवालात किए। आइंदा चंद रोज़ के अंदर 1,80,000 कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरान आइंदा के वज़ीर आज़म का फैसला करेंगे। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन वान, 92 न्यूज़, लंदन। प्राइम लॉ सॉलिसिटर की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ से पाकिस्तान के हक में फैसला आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल सॉलिसिटर सफदर अली गोंदल, मियां सुहेल और दीगर ने खिताब किया। वकला की एक कसीर तादाद उस मौके पर मौजूद थी। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। आलमी अदालत इंसाफ से कलभूषण यादव के हवाले से पाकिस्तान के हक में फैसला आने के बाद प्राइम लॉ सॉलिसिटर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सफदर अली गोंदल, उस्मान राजा और दीगर सॉलिसिटर्स ने कहा कि आलमी अदालत से पाकिस्तान के हक में फैसला पाकिस्तानी अदलिया के लिए बहुत खुशाइंद बात है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में आला अदालतों से लेकर नीचे तक तमाम अदलिया आज़ाद है। मौजूदा हुकूमत में अब गरीब और अमीर के दरमियान फर्क खत्म हो चुका है। अब महमूद और अयाज एक ही सब में खड़े हैं। तमाम लोगों को अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला हुआ है। ये हमारे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे एतमाद का इज़हार किया गया है, जिसमें हमें बड़ी खुशी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अदालती निज़ाम अब आज़ाद है और उम्मीद है कि आइंदा मज़ीद इसमें बेहतरी अदालती निज़ाम में लाई जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन आया है, वो इंडोर्स करता है कि पाकिस्तानी जुडिशरी के जो डिसीजंस हैं वो बहुत प्रिसाइज हैं और करेक्ट हैं और ये एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तानी जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है और सही डायरेक्शन में जा रही है। मुकर्रीन का ये भी कहना था कि आज के फैसले से ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान में अदलिया का निज़ाम दुनिया के चंद बेहतरीन निज़ामों में से एक है। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस से लेकर एक वकील तक कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए फैसले दे रहा है। पाकिस्तान की आला अदलिया से लेकर निचली कोर्ट तक एक इंसाफ मिल रहा है। अब सब जो है ना एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। महमूद अयाज इंसाफ जो है ना वो मिल रहा है। इस तरह से अगर मज़ीद जो है वो हमारी आला अदलिया और लोअर कोर्ट्स में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। अगर मज़ीद बेहतर हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो अदलिया है पूरी दुनिया में इनका बोलबाला होगा। अब इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो फ़ैसला आया है ये पाकिस्तानी निज़ाम की एक इंडिपेंडेंस का और उसकी जूरिस्प्रूडेंस को इंडोर्स किया गया है कि जिन नाम्स के ऊपर रहते हुए पाकिस्तानी कोर्ट्स ने फ़ैसला दिया है उसी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिकग्नाइज़ किया है, एक्नॉलेज किया है और सिर्फ रिव्यू के लिए भेजा है कि किसी किस्म का अगर कोई बायसनेस का कोई डाउट भी है तो उसको भी सेट असाइड करके एक इंडिपेंडेंट फ़ैसला दिया जाए। तो ये रिव्यू भी वही कोर्ट करेगा, वही जजेस करेंगे और कोर्ट रिव्यू करने वाला कोर्ट देखेगा कि अगर कोई ऐसी कोई फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस जो कि दौरान ट्रायल जो कि नहीं थी और अब आ गई हैं सामने तो उसको देखते हुए एक फ्रेश जजमेंट आएगी। इस मौके पर दीगर वकला जिनमें फरूख अब्बासी, तुराब अब्बासी, अजीज अहमद माइकल, जवेद इकबाल, आसम रंजा और मोहम्मद वहीद ने भी शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के खिलाफ आलमी अदालत के फैसले पर स्विट्जरलैंड के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि अदालती फैसले से कुलभूषण दहशतगर्द साबित हो गया, जिससे भारत का मकरू चेहरा खुलकर दुनिया के सामने आया है। कुलभूषण को निशाना इबरत बना दिया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये जो फैसला है इससे हमें बड़ी खुशी हुई है कि अब दुनिया को भी ये पता चल गया है कि खित्ते में जो भी दहशतगर्दी हो रही थी वो इंडिया ने ही करवाई है। पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ नाम बदनाम किया जा रहा था और इससे हम बेहद खुश हैं। और जो हमारी आर्मी का फैसला था वही आलमी अदालत का भी फैसला है, इससे भी हम बहुत ज्यादा खुश हैं। ICJ के फैसले के बाद तमाम पाकिस्तानी और में रहने वाले जो हैं वो बहुत खुश हैं कि कुलभूषण यादव के बारे में जो फैसला आया है वो पाकिस्तान के हक में आया है और इससे जाहिर होता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहा है। आज पाकिस्तानियों के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई जब आलमी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया और भारत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कुलभूषण एक भारत का जासूस है और पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, तो हम अमन पसंद लोग हैं और अमन को पसंद करते हैं। पूरी पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है और दूसरा पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि जो इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, तो ये इसकी आज कंफर्म हो गया है। पूरी आलमी अदालत ने भी कंफर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है और इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये भारत के मुंह पे एक भरपूर तमाचा है ताकि ये कि जो भी वो साजिशें पाकिस्तान के लिए करता है,
क्या नाम है क्रिकेट का मैदान हो या फिर क्या नाम है उसके अंदरूनी मामलात हो, वो हर मामले में पाकिस्तान को उलझाना चाहता है और हमेशा वो पाकिस्तान को ये चाहता है कि उसको दहशतगर्द साबित करे, लेकिन आज वो इस कोशिश में फिर नाकाम रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडियन जो कि एक जासूस था पाकिस्तान में जो पकड़ा गया था, उसके बारे से जो फैसला आया है, ये फैसला, ये सारसी कोर्ट है, इसमें को फैसले पाकिस्तान जो फैसला था उसको ने एंडोर्स किया। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस दी थी, जिसको इनने रिव्यू का बोला है, लेकिन यह है कि उसका मतलब ये नहीं है कि फैसले में कोई चीज़ में चेंजिंग होगी। लेकिन आज भारत का मकरूज चेहरा सबके सामने वाज़ेह हो गया है कि इंडिया किस तरह टेररिस्ट और जासूसों को दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गंडापुर बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों के दौरे में मसरूफ़ हैं। बर्मिंघम में अली अमीन के एजाज़ में ज़ोहराने का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज़ कश्मीरी कम्युनिटी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इसका मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और दीगर पार्लिमानी वफ्द की ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी से मुलाकात की गर्ज से बैरिस्टर करामत ने अपनी रहायश गाह पर एक ज़ोहराने का एहतमाम किया। कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह और दो टोक है। हमारी हुकूमत ने नहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई है। अक़वाम मुत्तहिदा और बरतानवी पार्लिमानी ग्रुप की रिपोर्ट्स ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीर के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम भारत के साथ अमन चाहते हैं और अमन के तमाम रास्ते कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की को बदतरीज जारी रखा हुआ है। मुल्क में पिछली हुकूमतों की वजह से खराब मुआशी सूरत हाल के बावजूद मौजूदा बजट में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फंड्स में किसी किस्म की कोई कटौती नहीं की गई। इस दौरान वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, MNA सदाकत अब्बासी, MNA शाहिद खटक, बैरिस्टर करामत, कम्युनिटी रहनुमा अब्दुल गफूर खाड़क ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर के हालात पर एक फिल्म बनाई जाएगी। एहतसाब का दायरा आज़ाद कश्मीर में भी बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, ये तो मकबूजा कश्मीर के ऊपर ही बन रही है, मकबूजा कश्मीर के हालात के ऊपर ही बन रही है। और ये जो कश्मीरियों के साथ ही हो रहा है 70 सालों से कि कश्मीर कौन है, क्या हो रहा है, इसके ऊपर ही सारी बन रही है। तो दुनिया में कन्फ्यूजन है या एक गलत पाकिस्तान का परसेप्शन है, तासुर है, उसको डिस्पेल करने की कोशिश की है। और हमें और स्पीकर साहब ने ये बात तय कर ली है, अब इस फोरम को बड़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाएगा। और ये वो है कि जिससे बगैर खर्चों के हम बड़ी अच्छी सफारतकारी कर सकते हैं और पाकिस्तान को एक दुनिया की फ्यूचर में एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे उसको प्रमोट करने के लिए ऐसी कोशिशों की ज़रूरत है। यहाँ पे आपने जो देखा, जो प्रोग्राम था, वो हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी या जो आज़ाद कश्मीर की हमारी जो कम्युनिटी बिजनेस, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ पे टूरिज़म, वहाँ पे मिनरल माइन, मुख्तलिफ वहाँ पे शोबे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आसानी के साथ। मीटिंग फेडरल मिनिस्टर ऑन कश्मीर अफेयर्स ने की है, हम इसको खुश आमदेद और वेलकम करते हैं। और ये पहली बार हमें कश्मीरियों की मसाइल बताने का और उनको इस मसले में इंटरेस्ट लेने का, ये इनको ही एहसास जाता है कि इतना बड़ा वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो हमारे मसले मसाइल हैं और जो पॉइंट्स रेज हुए हैं, वो देखते हैं कि इंशाल्लाह इनका भी जो उन्होंने प्रॉमिस तो हमें किया है कि हम रिस्पॉन्स करेंगे। हमारे बहुत मसाइल सुने और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जो भी आपके मसाइल हैं वो इंशाल्लाह वो हल करेंगे। जो लोकल हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं और तारकीन वतन को जो मुश्किलात हैं, उन्होंने वो भी वादा किया और हम इंशाल्लाह हम यकीन करते हैं कि ये हुकूमत जो इन्होंने जो हमारे साथ वादे किए वो पूरे करेंगे। इस दौरान वफाकी वजीर ने बैरिस्टर करामत को शील्ड भी पेश की। आखिर में वफाकी वजीर ने ओवरसीज कम्युनिटी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की ज़र मुबादला की शक्ल में मदद की। बर्मिंघम के बाद रुख करते हैं लीड्स का, जहां PTI कश्मीर नॉर्थ के साबिक सदर चौधरी मालिक ने वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर को इस्तकबालिया दिया। तकरीब से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मसला कश्मीर पर ज्यादा से ज्यादा काम मौजूदा हुकूमत कर रही है। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में तामीर और तरक्की के लिए मजीद फंड्स देंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट में।
वजीर उमूर कश्मीर शुमाली इलाका जात अली अमीन गंडापुर इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं। ब्रैडफोर्ड पहुंचने पर उनका पुरतिपाक इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया तकरीब और पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पहली दफा पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत आई है जो अवाम की हालत बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशां है। इसके लिए अवाम जो भी ताउन करना चाहें, बिलखसूस ताजिर बिरादरी टैक्स देने के लिए तैयार हो जाए। रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो लोगों की हालत बेहतर होगी। उनका मजीद कहना था कि अगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करप्शन और अवाम के लूटे हुए पैसों की वजह से जेलों में बंद हैं तो तारिकीन वतन के लिए बड़ी गारंटी है कि अब कोई उनके हुकूक पर डाका नहीं डाल सकता। कश्मीर को इंशाल्लाह हम लोग जितने भी हमने इंडिया सर्वे कर लिया है पूरा हेल्थ का और एजुकेशन का, जिसके अंदर वो तमाम डिफिशेंसीज जो है इंशाल्लाह हम दूर कर रहे हैं। उसके लिए भी हम 4 बिलियन दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट जो है। और हमने ये प्लान किया हुआ है कि जो हमारा 50 लाख घरों का प्लान है, पीएम के विजन का एहसास प्रोग्राम जो है, और साथ में जो आपका तीसरा जो आपका 10 बिलियन ट्री सुनामी है वो भी कश्मीर में एक्सटेंडेड है। मसला कश्मीर पे पहले बात होगी, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सीरियसनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कश्मीर के बारे में। फिर हमारा जो इजलास हुआ शुरू में ही हमारी हुकूमत बनने के बाद, उससे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बड़े ठोस तरीके से अपनी स्पीच में पहली दफ़ा कश्मीर के ऊपर बहुत मजबूत तरीके से बात की। इमरान खान के दौरा अमरीका के दौरान भी मसला कश्मीर सर फहरिस्त होगा। इस मौका पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI कश्मीर बरतानिया के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखूंगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद उनकी टीम का हिस्सा हैं। बहुत जल्द आज़ाद खित्ता में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। इस्तकबालिया तकरीब से चौधरी मालिक, चौधरी अखलाक, अरशद बरकी, चौधरी जावेद इकबाल ने भी खिताब किया और साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हमें पहली दफ़ा अप्रिशिएट किया गया, फिर चंद महीनों के बाद ये अप्रिशिएट करके हमारी PTI कश्मीर चैप्टर को उन्होंने ख़त्म किया। ये हमने हमारे अमूर कश्मीर के वज़ीर जनाब गंडापुर साहब, उन्हें भी हमने ये गुजारिश की, देखें आप तो हमारे वज़ीर हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं दुखी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हमें क्यों मिस यूज़ किया जा रहा है। हम यहाँ मेजॉरिटी में हम लोग हैं, हम लोग की अपनी शनाख्त है, हमारी शनाख्त को क्यों मसक किया गया। भारत में मोदी वज़ीर आज़म में जो जुल्म सितम कर रहा है, हमारा मुतालबा है कि कश्मीर के मसले को इमरान खान की हुकूमत खूब असन तरीके से हाईलाइट करे। उन्होंने अपनी इब्तदाई स्पीच में भी मसले कश्मीर को उजागर किया था, लेकिन इसके बावजूद उस अंदाज से मसला कश्मीर उजागर नहीं हो रहा है। हमारे कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद कश्मीर काज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। साढ़ा एक मुतालबा है कि मसला कश्मीर के हवाले नाल, क्योंकि इंडिया बहुत जुल्म सितम हो रहा लगे, तो मसला कश्मीर के हवाले नाल पाकिस्तान साड़ी मदद करे लगे, कितनी मदद कर सकना करे। दूसरा साढ़ा मुतालबा है रियाम पुल के हवाले नाल, बाकी साथियों भी मुतालबा किया है। मेरा भी पुरजोर मुतालबा है कि जो रियाम पुल है उसके दिसंबर तक जिस तरह वज़ीर अमूर कश्मीर वादा किया और जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए। मीरपुर के अंदर बाकी अजला में जो कश्मीरियों के मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए, और मसला कश्मीर को जो कश्मीर कमेटी बनी है उनको बैरिस्टर सुल्तान महमूद की क़यादत में जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मसला कश्मीर को उजागर करने में जो इमरान खान का स्टैंड है उस पर काम किया जाए। वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की इस्तकबालिया तकरीब में आमद पर ढोल की थाप और भंगड़े डालकर भरपूर इस्तकबाल किया गया और कारकुनों ने फूलों के हार डाले। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ओल्डहम पहुंचे तो कम्युनिटी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर बसने वाले लोगों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस हवाले से भारी बजट मुख्तस कर दिया गया है। तफसीलात देखते हैं एतजाज़ चौधरी की रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर इन दिनों बरतानिया के दौरे पर है, जहां वो मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से इनके एजाज में मुनक़िद तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले की एक अहम तकरीब ओल्डहम में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं चौधरी अब्बास बाबका, तारिक महमूद बाबका, चौधरी सरदार, चौधरी इमरान, अदिल सलीम और शहनाज सदीक की जानिब से मुनक़िद की गई। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुल्क में बेशुमार मसाइल का सामना है। पाकिस्तान पर कर्जों का अंबार लगा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान दिन रात मुल्क को सही सिमत लाने के लिए काम कर रहे हैं। ये लाहौर के ऊपर जो खरबों रुपया लगाया गया है
लंबे लंबे बूट पहनकर, हैट पहन के जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ टीटी साहब ने फिरते रहे हैं, ये सारा तो सवाल उनसे करना चाहिए कि खरबों रुपए कहाँ लगे हैं कि लाहौर हर दफ़ा डूब जाता है। मुज़ार साहब ने तो पहला बजट अभी पास किया है, उन्होंने कोई निकासी की स्कीम ही नहीं की है अभी तक। तो अगर उन्होंने की हो कोई स्कीम निकासी की और वो फेल हो गई हो तो उस पर उन पर सवाल बनता है। ये तो जो खरबों रुपए लाहौर में लगा है नहर से में, और ये निकासी की स्कीमें, पीने के पानी की और स्कीमें, और ये रोड बनाया इन्होंने अंडरग्राउंड इतने ज़्यादा इन्होंने अंडरग्राउंड जो है फ्लाईओवर्स बनाए हैं, अंडरग्राउंड रास्ते बनाए हैं। तो उसके अंदर उनसे ये सवाल बनता है कि आपने पैसा किस तरह लगाया, किस तरह आपकी प्लानिंग थी और किस तरह किया, क्योंकि 40 साल हुकूमत उन्होंने की है वहाँ पे। मुज़ार साहब अभी वज़ीर आला बने हैं, अभी उन्होंने प्लान करके लाहौर के लिए इस चीज़ के मसले को हल करने के लिए कोई प्लान करना है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ के बारिश का पानी ठहरा हुआ है, उसमें कारकर्दगी पे क्वेश्चन करना मुज़ार साहब का बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ, जिन्होंने 40 साल हुकूमत की, उनसे ये सवाल बनता है कि आपने खरबों रुपया भी लगाया और आपका रिजल्ट ही है कि लाहौर डूबा। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का हर कारकुन इमरान खान के साथ है और पाकिस्तान की खातिर हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार है। Let me tell you one thing, is that one thing I've learned in Pakistan Tehreek Insaf is that when it comes to gender and the workers, and especially at grassroots level, there is no gender differentiation. मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर बसने वाले लोगों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इस ज़मन में 3 अरब का बजट पुख्ता बंकर्स बनाने के लिए रखा गया है। इन्होंने मजीद कहा कि भारतीय इश्तिआल अंगेजी के बाइस शहीद होने वालों के लवाहकीन को मिलने वाले मुआवजे का भी असरनो जायजा लिया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, ओल्ड होम, मैनचेस्टर। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान के वफ्द के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। वफ्द अराकीन का कहना था कि पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर देहातों में तरक्याती काम भी कराने होंगे और वहाँ रहने वालों को मजबूत करना होगा। शाहिद मीर की यह रिपोर्ट देखिए। रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के शहरों और देहातों में काम करने वाली NGOs के अहदेदारान इन दिनों यूके के दौरे पर आए हुए हैं। इस सिलसिले में स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में इनके एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। मेजबानी के फराइज मोहम्मद शोएब एडवोकेट, गुलाम नबी अकाउंटेंट और फयाज खान ने अदा किए। आला वफ्द में शामिल अफसरान ने हाजरीन को पाकिस्तान में होने वाले तरक्याती प्रोग्राम से आगाह किया। वफ्द अरकान और दीगर शुरका का कहना था कि देहातों में रहने वाले लोगों को मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर रोजगार फराहम करने के साथ साथ इन्हें माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के तहत कारोबार भी शुरू करा देने चाहिए। इधर आए हैं, इधर पे उन्होंने सबने रियलाइज़ किया कि असल में पाकिस्तान में अच्छा काम हो रहा है और इंशाअल्लाह यहाँ के लोग इसके साथ ताउन करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारे पाकिस्तान में एम्पावरमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सारे प्रोग्राम जो है चले और ये IRM वाले जो है ये सारे काम करते हैं। इंशाअल्लाह इसमें अच्छी तवक्को रखते हैं। मैं समझता हूँ कि आज का जो फंक्शन था ये नहायत ही पॉजिटिव था, इन द सेंस कि फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट हैंड जो प्रोफेशनल लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे हम मिले हैं 1-to-1 और उनसे हमें जो नॉलेज और जो सपोर्ट मिली है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी इंकरेजमेंट है। जो हम लोग एक्सपैट्रिएट है यहाँ पर सेटल है, हम लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शाही में मेंबर स्कॉट्स पार्लियामेंट अंत सरवर, वैली काउंसलर राजा हनीफ, मिर्जा अमीन और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जो पाकिस्तान के देहात है उनमें जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने गाँव को ऊपर उठा सकते हैं। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। लेचवर्थ गार्डन सिटी का शुमार लंदन के खूबसूरत नवाही इलाकों में होता है। ये शहर सकाफती प्रोग्राम्स और फेस्टिवल्स के हवाले से अपना खास मकाम रखता है। इस खूबसूरत और सेहत अफजा कस्बे की सैर करवा रहे हैं सफ्तर बुखारी अपनी रिपोर्ट में। लिचवर्थ गार्डन सिटी यूं तो एक छोटा सा कस्बा है जिसकी कुल आबादी 35,000 है, लेकिन खूबसूरती में इसका कोई सानी नहीं। इस कस्बे को यूके का फर्स्ट गार्डन सिटी होने का भी एजाज हासिल है और उसे खूबसूरत बागात का शहर भी कहा जाता है। इसके
साथ यूके का पहला राउंड अबाउट वाक़या है जो कि 1909 में इसी टाउन में तामीर किया गया था। गर्मियों में आए रोज यहाँ नए नए इवेंट्स का इनेकाद किया जाता है, जहाँ इंग्लिश मलबूसात, ज्वेलरी के साथ हलाल खाने के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं, जिसे मकामी आबादी बिलखसूस बच्चे, बूढ़े, औरतें खूब इंजॉय करते हैं। इस टाउन में ज्यादा इंग्लिश कम्युनिटी आबाद है और ये ल्यूटन से 9 मील साउथ वेस्ट के फासले पर वाक़या है। सफ्तर बुखारी, 92 न्यूज़, ल्यूटन। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बहावल नगर से मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने दुबई में अपनी पार्टी रहनुमाओं के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चौधरी एहसानुल हक बाजवा का कहना था कि हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करने की पादाश में उनके खिलाफ एंटी करप्शन में FIR दर्ज की गई, जिसकी वो शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। बहावल नगर से मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा के खिलाफ एंटी करप्शन में होने वाली FIR के खिलाफ मुस्लिम लीग नून UAE के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल, MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा और दीगर रहनुमाओं ने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। बहावल नगर NA 168 से 75,000 वोटों की लीड से इलेक्शन जीतने वाले कौमी असम्बली के दूसरे अमीर तरीन मेंबर मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि उन्हें पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है और उन्हें यकीन है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। उनका मजीद कहना था कि जब PTI की हुकूमत की जानिब से दबाव के बावजूद वो नहीं झुके तो उनको झूठे मुकदमात में फंसा दिया गया। जिस जमीन का केस बनाया गया है उसको नीलामी में खरीदा था, जिसकी तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं और उनके तमाम असासे जो पाकिस्तान में और बैरून मुमालिक हैं सब के सब डिक्लेयर्ड हैं और बैरून मुमालिक से कमाए हुए पैसों की मुकम्मल मनी ट्रेल भी मौजूद है। मैंने करोड़ों रुपए 2005 से लेके पाकिस्तान में भिजवाए हैं और वो मैंने पूरा प्रूफ दे दिया। मैंने हर अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है। अगर आपको याद हो कि जब मैं MNA बना था तो जियो में ने और मुख्तलिफ चैनल में ये खबर चलाई थी कि मैं पार्लियामेंट का दूसरा अमीर तरीन MNA हूँ। शायद मैं उस लिहाज से अमीर तरीन नहीं हूँ, लोग बहुत अमीर तरीन होंगे क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर्टी सारी डिक्लेयर की थी। एहसानुल हक बाजवा ने कहा कि वो जिला बहावल नगर के सबसे बड़े जमींदार हैं। उन पर एक पर्चा पानी चोरी का भी बना दिया गया है जो न सिर्फ झूठ का पुलंदा है बल्कि एक मजाक है। अभी 3 दिन पहले फिर एक दूसरी FIR मेरे खिलाफ दे दी गई है थाना बख्शन खां में। वो क्या FIR है कि मैं नहीं, उसमें 22 मेरे दोस्त भी शामिल हैं कि वहाँ बाजवा साहब पानी चोरी करते हैं। भाई किसी MNA का क्या काम है कि वो पानी चोरी कर रहा है, कोई और नहीं मिला तो एक पानी चोरी की FIR दे दी है। उन्होंने कहा कि इदारे इंसाफ करें। जिला बहावल नगर के मकामी मीडिया की मौजूदगी में मेरी तमाम जमीन की पैमाइश की जाए। अगर 1 इंच जमीन भी मेरे पास नाजायज निकल आए तो वो देनदार हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार हूँ तो मुझे नहीं पता, मेरा बिजनेस आपके सामने यहाँ भी है, यूरोप में भी है और भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मेरा बिजनेस है और मैं पिछले 25-30 साल से यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। तो कभी मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली मेरी ज़मीन कहाँ कहाँ है। तो मैं कभी ज़मीन पर मैं गया नहीं, मैं खुद काश्त ज़मीन नहीं है। तो 92 एकड़ वहाँ मेरी ज़मीन निकली है, बाकी मुख्तलिफ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। FIR में इन्होंने लिख दिया कि 83 एकड़ पर बाजवा साहब नाजायज़ काबिज़ हैं। तो मैं मीडिया के तवस्त से अपने एंटी करप्शन के अदारे और दूसरे तमाम अदारों को रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे इलाके चिश्तियाँ और ज़िला बहावल नगर का तमाम मीडिया इकट्ठा किया जाए और वहाँ जाकर मेरी जगह की पैमाइश की जाए, मीडिया की सामने उनकी सरबराही में कि पैमाइश की जाए। अगर मेरे पास 1 एकड़ भी नाजायज़ काबिज़ हों तो मेरे खिलाफ जो मर्जी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इससे पहले कि मुस्लिम लीग नून जेल भरो तहरीक शुरू कर दे, PTI हुकूमत होश के नाखुन ले और मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए अमली इक़दामात उठाए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने दारुल हुकूमत रियाज के गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की है। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज गवर्नर रियाज से मुलाकात के लिए पहुंच गए, जहां गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर दोनों के माबैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई और मुस्तकबिल में भी दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान दोस्ती को मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि फेस ऐप आपकी जासूसी कर रही है। अमरीकी हुकाम की वार्निंग के बाद अमरीकी मीडिया ने वावेला मचा दिया है। होशियार रहें, बुढ़ापे की तस्वीर देखते देखते अपना मुस्तकबिल गैर महफूज न बनाएं।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रूसी माहिरीन ने जासूसी का जाल बिछा दिया। अमरीकी हुकाम खतरे की घंटियां बजाने लगे। फेस ऐप दर हकीकत आपकी जासूसी कर रही है, जो चेहरे के खदोहाल को बदलते बदलते सारिफिन का डेटा भी चोरी कर लेती है, जिसे मुबैना तौर पर रूसी इंटेलिजेंस के डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा है। तेजी से मकबूल होती इस ऐप ने ओल्ड एज चैलेंज का आगाज किया, जिसमें सोशल मीडिया सारिफीन ऐसे मुब्तला हुए कि हर शख्स बुढ़ापे वाला फिल्टर इस्तेमाल करके तस्वीर अपलोड करने लगा। यहाँ तक कि बरतानिया का शाही खानदान भी इसकी लपेट में आ गया। नाक़दीन का कहना है कि फेस ऐप को रूसी इंटेलिजेंस की साजिश करार देना उसी रूस फोबिया का हिस्सा है, जिसमें 2016 के अमरीकी इलेक्शन में रूस की मुबैना मुदाखलत के बाद से शिद्दत आ गई है। प्राइम टाइम बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92news HD.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।